ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے اور آج کا حوالہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ افسس کے مسیحیوں کے نام مقدس پالوس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اس ایک آیت کی تلاوت ہم پورے زور کے ساتھ، ایک دل کے ساتھ ہو کر کریں گے اور خدا کے کلام کی سعادت کو اور اس کی برکت کو حاصل کریں گے۔ جی خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ آج کی اس مرکزی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں اتریں گے وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اپنے اس مضمون کو اونچی آواز میں پڑھ لیں۔ جی اوپر سے پڑھیں۔ Stop limiting life's possibility. پھر سے پڑھیں۔ Stop limiting life's possibility. اردو زبان میں زندگی کے امکان کو محدود کرنا مہربانی سے بند کر دیں۔ زندگی کے امکان کو مہربانی سے محدود کرنا بند کر دیں۔ اور میں اس پیغام کے آغاز میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں اور آپ جس خدا کے ماننے والے ہیں اس کی ڈکشنری میں لفظ امپاسبل بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے خدا کی ڈکشنری میں لفظ امپاسبل نہیں ہے۔ وہ پاسبلٹیز کا خدا ہے، وہ ممکنات کا خدا ہے، اور وہ میری اور آپ کی درخواست اور میرے اور آپ کے خیال سے کہیں زیادہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ لفظوں پر غور کریں، وہ میری اور آپ کی درخواست اور وہ میرے اور آپ کے خیال سے کہیں زیادہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جب میں خدا کے کلام کے اس حصے کی تیاری کر رہا تھا تو میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا تھا اور میں اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا، زندگی میں 20 بار ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب میں اور آپ کوئی کام کر چکتے ہیں اور اس کام میں ہمیں کامیابی اور کامرانی مل ہی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اب ہائیسٹ پلیس پر ہیں، ہم نے اونچائی کو چھو لیا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ انتہا یہی ہے، جبکہ شاعر کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کئی بار جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب کوئی کام میں اور آپ کر چکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹاپ پر چلے گئے ہیں، ہائیسٹ پلیس پر ہیں، ہم تو انتہا کو چھو چکے ہیں، جبکہ یہ انتہا تو نہیں ہے۔ بائبل کا خدا تو ہمیں اس سے بھی کئی لیول اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی درخواست، وہ میرے اور آپ کے خیال سے کہیں بڑھ کر کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ مجھے اور آپ کو چوٹیوں پر، بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے زور میں ہوتے ہوئے کئی چوٹیوں کو سر کرتے اور پھر کرتے چلے جائیں۔ اور ابھی ہم نے خدا کی تعریف میں پادری حزقیل سروش صاحب کا گیت گایا، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، تیرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ وہ کون سا پہاڑ ہے جسے میرا اور آپ کا رب خداوند
मैदान करने की कुदरत और सलाहियत नहीं रखता। वो कौन सी मुश्किल है, वो मुश्किलात का कौन सा भारी पत्थर है जिसे मेरा और आपका खुदा लुढ़काने की कुदरत और सलाहियत नहीं रखता। हमें एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे ट्रस्ट के साथ, एक अच्छे यकीन के साथ अपने रब खुदावंद में हर रोज आगे और फिर आगे और फिर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में से एक रेफरेंस मैं आपको देने लगा हूं। बीसीओ रेफरेंस है, इतना टाइम नहीं, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस मैं आपको देने लगा हूं। गिनती की किताब में जब हम जाते हैं तो गिनती की किताब के 13वें और 14वें बाब में 12 जासूस जो हैं वो भेजे गए ताकि वो जाकर जासूसी करें और जो टास्क कादिर खुदा ने दिया है उसके हवाले से आकर रिपोर्ट करें। और आप जानते हैं कि उन 12 में से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, बाकी 10 के 10 जो हैं उन्होंने लोगों के दिलों को पिघला दिया। बाइबल में यही लफ्ज है, उन्होंने लोगों को कमजोर कर दिया, उन्होंने लोगों की हिम्मत को तोड़ दिया, चिकनाचूर कर दिया और कहा वहां के लोग तो हमसे ज्यादा जोरावर हैं, हम तो उनके सामने टिड्डों की मानंद हैं। बाइबल में यही लिखा है, हम उनको जेर नहीं कर सकते, हम उन पर कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं कर सकते, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। और आप जानते हैं कि इस नेगेटिव रिपोर्ट के नतीजे में फिर क्या हुआ और किस तरह से कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कौम इस बात को भूल गई कि जिस खुदा ने हमारे लिए कुलसम को 2 टुकड़े कर दिया, सामने मौत थी, पीछे भी मौत थी, आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौजें थीं, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, क्या वो इन कौमों को हमारे सामने डाल नहीं देगा? क्या इन पर हमें कामयाबी और कामरानी नहीं बख्शेगा? लेकिन कौम कमजोर पड़ गई। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि कई बार हमारे घरों में और हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अक्सर नेगेटिव सोच के हामिल होते हैं और वो खानदान के और कलीसिया के बाकी मानदा लोगों को भी कमजोर और फिर कमजोर करते और करते चले जाते हैं। मैंने हमेशा इस ऑल्टर से और मैंने हमेशा मॉर्निंग डिवोशन के हवाले से पॉजिटिव सोच देने की कोशिश की है और मैंने हमेशा ये सिखाया है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हर शाम के बाद सुबह का होना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि मैंने कितनी बार ये बात कही कि इन 2 सालों के दौरान माना कि हमने सफर किया है, माना के रुपए पैसे के हवाले से हम कमजोर हुए हैं, हम फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली भी कमजोर हुए हैं, लेकिन मैंने बार बार इसी ऑल्टर से ये कहा कि मेरा रब खुदावंद बाजी को पलट देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। और मैंने कितनी बार कहा कि आप एक्सपो की कामयाबी के लिए दुआ करें। अगर एक्सपो कामयाब हो जाता है, इन्वेस्टर्स यहां आते हैं, नई कंपनीज यहां खुलती हैं, नई जॉब्स यहां शुरू हो जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक मैंने इन गुजरे 2 हफ्तों में सर्वे किया है, देखा है, लोगों से मिला हूं, विजिटेशन के हवाले से लोगों तक पहुंचा हूं, लोग तो बड़े खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। रियल एस्टेट के लोग यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछने के इंटरनेशनल सिटी में रेट क्या था और अब क्या है, पहले कमीशन क्या था और अब कमीशन डबल हो गया।
वो फ्लैट जो 1700-1800 में ये सेल कर रहे थे, अब 3000 दिरहम में सेल कर रहे हैं। 3000 दिरहम में सेल कर रहे हैं। आप जरा टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके साथ सफर करके उनसे पूछें तो सही कि कैसा चल रहा है। मुझे तो BCO ने ये कहा कि इन 6 महीनों में हमने इतनी रोटी कमा लेनी है कि फिर हम 2-2 साल के लिए अपने घर चले जाएंगे, परवाह ही नहीं है। इतना खुदा ने हमें ब्लेस किया है और ब्लेस कर रहा है। मेरा बेटा जो है वो एक्सपो की टीम में है और वो हर रोज मुझे आकर रिपोर्ट देता है कि एक्सपो की वजह से लोग बड़े खुश हैं और इस कंट्री में एक हलचल सी दिखाई देती है। तो भाई परेशान क्यों हैं? कामयाबी के इम्कानात जो हैं मेहरबानी से उनको महदूद ना करें। अपने रब खुदावन को महदूद करने की, लिमिटेड करने की कोशिश ना करें। फिर से कहूंगा, हमारे जिंदा खुदा की डिक्शनरी में लफ्ज इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। वो मुमकिनात का खुदा है। वो मेरी और आपकी दरखास्त, मेरे और आपके ख्याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। आप क्यों दिल छोड़े बैठे हैं भाई? आप क्यों अफसरदा हैं? आप क्यों परेशान हैं? और आप क्यों मंफी सोच को, नेगेटिव सोच को लेकर बैठे हुए हैं? और आपकी इस नेगेटिव सोच की वजह से आपके घर पर और आपकी कलीसिया पर इसका असर पड़ रहा है। खुदा के लिए पॉजिटिव हो जाएं भाई, पॉजिटिव हो जाएं। मैंने हमेशा बेटा ये कहा कि जिस रंग का चश्मा लगाकर आप दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया उसी रंग की दिखाई देगी। पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखेंगे, सब पॉजिटिव होती चली जाएंगी। हर वक्त नेगेटिव 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 होंगे। ये नेगेटिव वाइब्रेशन न सिर्फ आपको बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बर्बाद कर देगी। पॉजिटिव होना है। अभी आने से पहले जब मैं अपनी शख्सी बाइबल स्टडी में खुदा के कलाम का मुताला कर रहा था तो मैंने ये सीखा कि हमें वरी की जगह, फिक्र और सोच की जगह को अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को जगह देने की जरूरत है। जब हम वरीड होते हैं तो फिर थैंक्स गिविंग जो है हमारी जिंदगी से चली जाती है, और जब हम थैंक्स गिविंग की तरफ आ जाते हैं तो फिर वरी की ऐसी की तैसी, वरी की मौत हो जाती है। हर तरह की फिक्र, सोच, डर, खौफ जो है उसकी मौत हो जाती है। तो अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को जगह दे। भाई आज कम है, कोई बात नहीं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और इस यकीन के साथ आगे बढ़ें कि खुदावंद बहुत ज्यादा भी देगा। मेहरबानी से पॉसिबिलिटीज के हवाले से जो इम्कानात हैं उनको महदूद करने की कोशिश ना करें। अभी ये साल खत्म नहीं हुआ, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा और कहीं जाकर लिख लीजिएगा, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ। इस साल के दौरान कादिर खुदा मेरे और आपके लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। हर हफ्ते मैं आपके सामने शुक्रगुजारियों का ढेर लगा देता हूं भाई। ये झूठ होता है जो मैं हर हफ्ते यहां खड़े होकर बोलता हूं। लोगों की जिंदगियों में खुदा काम कर रहा है, हफ्ता ब हफ्ता वो काम करता है और हमें खुदा शुक्रगुजारी का मौका देता है। और मैं आज आपसे कहे देता हूं, अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को जगह दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सारी की सारी प्रॉब्लम्स, डर, खौफ, कमी, कमजोरी आपकी जिंदगी से जाती रहेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में खुदा को थैंक्स कहना सीख लें भाई। उसकी शुक्रगुजारी शुरू कर दें, उसकी शुक्रगुजारी शुरू कर दें। चलें आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, हम नेगेटिव सोच के हामिल होकर जिंदगी में कामयाबी के इम्कानात को, बरकतों के इम्कानात को, कामरानी के इम्कानात को कम कर देते हैं, महदूद करते चले जाते हैं, महदूद करते चले जाते हैं। हम कोशिश भी नहीं करते और हम दुआ भी नहीं करते, सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? खुदा सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। वो मेरी और आपकी दरखास्त और ख्याल से कहीं ज्यादा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। कोशिश भी करें, दुआ भी करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप कोशिश करके देखें तो सही। आप एक बार यीशु के नाम से दोबारा जाल डालकर देखें तो सही, फिर होता क्या है? आप जाल भी डालने को तैयार नहीं होते और आप दुआ भी करने को तैयार नहीं होते। दुआ वो कुव्वत है जिसके बलबूते पर हम बड़े बड़े पहाड़ों को सरका सकते हैं। भाई बड़ी बड़ी मुश्किलों को मैं और आप दूर कर सकते हैं। हमें कोशिश और हमें दुआ को जारी रखना है। चंद एक एग्जांपल्स मैं आपको देने लगा। लोगों ने जिंदगी के इम्कान को महदूद नहीं किया, कामयाबी और कामरानी और बरकतों के इम्कान को महदूद नहीं किया। मैं चंद एक रेफरेंस आपको देने लगा हूं। सबसे पहले मैं यब्बीस का रेफरेंस आपको दूंगा, पुराने अहदनामा में से। ये एक ऐसा शख्स है जिसकी मां ने उसे दुख के साथ, दर्द के साथ जन्मा है, और यब्बीस ये जानता है कि बाइबल का खुदा इंक्रीज करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। इसलिए जब वो खुदा से दुआ करता तो उससे कहता है, आई खुदा तू मुझे इंक्रीज कर। आइए प्रैक्टिकल करें। एक ऊंची आवाज के साथ आज खुदावंद के हुजूर कहें, आई खुदा तू मुझे इंक्रीज कर, प्लीज। मुझे इंक्रीज कर। फिर से कहें, मुझे इंक्रीज कर। आमीन। खुदा ऐसा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। हमने कभी ये दुआ की ही नहीं। हम एक दड़बे में रहना चाहते हैं, हम दड़बे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हमने कभी खुदा को ये कहा ही नहीं कि खुदा तू हमें इंक्रीज कर। हम यारस में रहना चाहते हैं, हम निशान सनी में रहना चाहते हैं, वो हमें डॉज में रखना चाहता है। हम छोटी छोटी सी गाड़ियों में रहना चाहते हैं, वो हमें निशान पेट्रोल में और पोर्शे में और BMW और मर्सिडीज में रखना चाहता है। लेकिन हम करें क्या? हमारा यकीन ही ठीक नहीं। अरे भाई, जिंदा खुदा से मांगते हैं, वो सबसे बड़ा है, तो फिर बड़ी चीज मांगे ना उससे। आप उसे महदूद क्यों करते हैं? महदूद क्यों करते हैं? वो तो सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। वो तो सब कुछ देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मुझे बताएं कि दुनिया की वो कौन सी चीज है जो रब खुदावंद आपको नहीं दे सकता, अगर ईमान सच्चा हो और कोशिश पूरी हो। एक और मिसाल ले लें। उस औरत की मिसाल जो 12 वर्ष से बीमार थी, 12 वर्ष से उसे खून जारी था। उसने कोशिश की, हालात बड़े गैर थे और हालात ऐसे नहीं थे कि वो खुदा यीशु मसीह तक पहुंच पाती, लेकिन उसने इरादा कर लिया। बाइबल में लिखा है उसने दिल में ये बात ठहरा ली और उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक का सिर्फ किनारा ले लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। उसने कामयाबी के इम्कान को महदूद नहीं किया। उसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का सिर्फ किनारा लिया और आप जानते हैं कि वो बिल्कुल शिफायाब हो गई। कामयाबी, कामरानी और बरकतों के इम्कान को महदूद ना करें भाई। तीसरी मिसाल ज़कई की मिसाल। उसके सामने भी एक बहुत बड़ा टास्क है और उस टास्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हायल है वो ये है कि ज़कई का कद छोटा है। अब इतने बड़े हजूम में वो यीशु को कैसे देखे? आप जानते हैं उसने कामयाबी और कामरानी में, जिंदगी में कामयाबी के इम्कान को महदूद नहीं किया। उसने जंप लगाई और वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया
اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھا. اس نے صرف یسوع کو دیکھا. اس کے اندر خداوند یسوع کو دیکھنے کی طلب تھی اور خداوند یسوع مسیح کو اس کے گھر جانے کی طلب تھی. نام لے کر بلایا اور کہا آئے زکائی نیچے اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. یہ ضروری کیوں ہوا ہے؟ لفظوں پر غور کریں. یہ ضروری اس لیے ہوا ہے کہ تو نے تھوڑی سی کوشش کی ہے. اب جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے مل کر رہے گا. اور کیا کہا؟ آج اس گھر میں اور آج اس زندگی میں نجات آئی ہے. کوشش. ایک اور مثال لے لیں اس اندھے برتلمائی کی جس کو روکا بھی گیا, ڈانٹا بھی گیا کہ چپ کر, لیکن وہ اور زیادہ چلایا اور کہا آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح تک اس کی آواز پہنچ گئی. اس کی آواز پہنچ گئی اور لکھا ہے کہ وہ اسی وقت بھلا اور چنگا ہو گیا. ایمان کی لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں اس بیوہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور مثال لے لیں جو ایک قاضی کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کی نہیں سنتا, لیکن وہ بار بار کوشش کرتی ہے, بار بار کوشش کرتی ہے. وہ زندگی میں کامیابی کے امکان کو محدود نہیں کرتی, بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور بالآخر قاضی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ لاؤ یار, اس بیوہ نے تو میرے ناک میں دم کر دیا. کیا میں اور آپ اس سٹیج تک پہنچے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس بیوہ کی طرح اتنے زور سے اور اتنی بار دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ ہم ایک ہی بار کھٹکھٹا کے نیگیٹو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی دوبارہ کوشش کریں, پھر کوشش کریں. ممکن ہے کہ شاگردوں کی طرح آپ یہ کہیں خداوند ہم نے تو ساری رات محنت کی ہے, ہم نے تو ساری رات کوشش کی ہے, ہم نے ایک مچھلی نہیں پکڑی. اور ممکن ہے کہ صبح سویرے میں خداوند آپ کے پاس آ کر کہے دوبارہ جال ڈالو, اور آپ دوبارہ جال ڈالیں اور 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کھینچ کر کنارے تک لائیں. آپ زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے امکان کو محدود نہ کریں گے, اپنے رب خداوند کو محدود نہ کریں. ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے. میں پچھلے ہفتے میں شاذر کے گھر میں تھا. وکی سے میری ملاقات ہوئی, ہنا بیٹی سے ملاقات ہوئی. ان دونوں بچوں کا ٹیسٹ تھا. ہم نے وہیں بڑے بوجھ کے ساتھ دعا کی اور میں نے پیار والا تھاپا ان کو دیا. میں نے کہا جاؤ ایسا تسی کامیاب ہو. وکی نے کوئی 11ویں مرتبہ ٹیسٹ دیا تو بے دل بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ پیار کا تھاپا ہے, یہ میرے یسوع کا تھاپا ہے, اب جاؤ. اور میں بڑا خوش ہوں کہ دونوں بچوں نے ایک دم یوں کر کے لائسنس لیا. خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے. آپ کوشش نہ چھوڑیں, خدا کے لیے کوشش نہ چھوڑیں, کوشش کو جاری رکھیں, دعا کے عمل کو جاری رکھیں. آپ بے ہمت نہ ہوں, بے حوصلہ نہ ہوں, بے دل نہ ہوں. اس بیوہ کی طرح تھوڑے سے پیار میں ڈھیڑ بن جائیں. ہم نے بھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے, ہم نے بھی کھٹکھٹاتے رہنا ہے. اور اس کہانی میں یہ لکھا ہے کہ اگر بے انصاف قاضی بار بار بیوہ کے جانے پر اس کی سن سکتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی بے انصاف تو نہیں ہوں نا بھائی. آپ آئیں تو صحیح, آپ مانگیں تو صحیح, آپ کوشش تو کریں, آپ دعا تو کریں. میں سب کچھ کرنے اور دینے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہوں. سندا ہے رب, سندا ہے میری دعا, رب سندا ہے. تو آئیے پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اور آج پریکٹیکل کریں گے
और इस गीत का कोर्स हम दोबारा गाएंगे और उसके बाद हम दुआ रवानी और बरकत के कलमे के साथ खुदा के घर से दिल से गाएंगे भाई। और डाउट्स को निकाल कर नीचे कहीं फेंक दें, उसके ऊपर अपना पांव रख दें ताकि डाउट जो है ना वो सर ना उठाए। उठा के अपने जहन से हर तरह के डाउट को नीचे रखें और उस पर अपना पांव रख दें और उसको कहें तेरी ऐसी की तैसी, अब मैंने खुदा से पाना भी है और मैंने पाकर रहना भी। तो आइए फिर दिल से गाएं।